Bismillahirrahmanirrahim. My dear student, as we discussed in previous lecture, that we will also uh, introduce you people with some mathematical tools, and the mathematical tools is in this case is the uh, Mathematica 7.0, and how you can install this tool. So, if you look at the one of the folder in my laptop, uh, the softwares, and in the software we have Mathematica 7.0, and this is exactly the Mathematica software. So here, if you click on window, you will see a setup file, and once you click on this setup file, you can easily install this Mathematica software. And you can see here, uh, I already installed this software, but uh, you can install this software in your computer. And you can see here, once you click on that setup, you will have a window like this one, but I already installed this one, so I'm not going to install. And when you click yes button, you can install this software in your computer. So now, once you install this software, then you will have a window like this one. You can see here at that corner you can see Wolfram Mathematica 7.0, and these are some operations which I have done before this lecture. You can see here, uh, this is exactly the velocity profile for the Hagen plane Poiseuille flow. U is equal to pressure into 1 by 2 mu into y square minus h square. We want to graph this, uh, the velocity profile of the visual of this velocity profile of the Hagen plane Poiseuille flow. So the goal here, you will also use this software, and further you will visualize all your calculation using this software. So this is just a tutorial for you people that how you can visualize things using the Mathematica software. So I'm just tracking the velocity profile of the Hagen plane Poiseuille flow. And if you look in this Hagen plane Poiseuille flow profile, here we have some constant value. Pressure is a constant, mu is the coefficient of viscosity, and h is the height between the two flat plates. So these are dummy values. Once you assign values to these constant, and this is another command which has this form, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, needs और फिर brackets, plot the regions, plot this u, this is that variable u, और यहाँ पे जो वेरिएबल है आपके पास उसको आप बाउंड्रीज भी असाइन करें. और अगर आप हैगन प्लेन पॉजिटिव फ्लो को थोड़ा सा रिवाइज करें तो उसमें जो बाउंड्री कंडीशंस यूज़ हो रहा है दैट इज़ 0 and 1. प्लॉट 1 एक्सिस द एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा आपके पास क्या है, दी वी कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो इसको आप कैसे रन करोगे, शिफ्ट एंटर के साथ जब इसको आप प्रेस करोगे तो the software already read this line. another one, इसको आप शिफ्ट एंटर करें तो अगेन सॉफ्टवेयर ने इसको भी रीड किया, और दिस इज द लास्ट स्टेप by which the graph will be visualized. जब आप इसको शिफ्ट एंटर क्लिक करोगे तो you will have a graph this one. थोड़ा सा इसको मैं अगर रिमूव करूँ, कट दिस ग्राफ, एंड फॉर शुरू से अगर आप इसको देखें, shift enter, shift enter and shift enter, we will have this graph. So
This is now the visual of the Hagen plane Poisson flow, and from this visual you can discuss the variation of the velocity distribution between the two plates. If you look at this graph, how we can discuss this graph by keeping in view the Hagen plane Poisson flow. तो यहाँ पे अगर आप देखें, this is x axis and that is exactly the velocity profile. तो जो जो आप इस origin से x की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो velocity में increase आ रहा है. So the velocity is increases, and you can see here, if this is the wall of that Hagen plane Poisson flow, तो आपको ये भी पता है कि वॉल के साथ जितने भी फ्लूइड्स पैरामीटर थे या फ्लूइड पार्टिकल्स थे, उनकी जो वेलोसिटी थी वो एज कंपेयर टू दी वेलोसिटी एट द सेंटर लाइन, वो आपके पास क्या आ रही थी, मतलब उसकी वेलोसिटी एज कंपेयर टू दी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर लाइन इज लेस वेलोसिटी. तो ये एग्जैक्टली उसी हैगन प्लेन पॉइजले फ्लो को ये जो ग्राफ है ये डिपेक्ट कर रहा है कि हाउ द वेरिएशंस ऑकर between the coordinate system of the Hagen plane Poisson flow after the visualization of the velocity profile. So you can see here in this mathematical software. Further, जैसा कि हमने पहले डोमेन डिकम्पोजिशन मेथड में एक एग्जांपल सॉल्व किया था, एंड इफ़ यू लुक एट दैट एग्जांपल एग्जैक्टली, ये वो बुक है दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें ये एग्जांपल हमने एडीएम से सॉल्व किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स. और मैं इसका जो विजुअल है इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिका से इसकी ग्राफ प्लॉट करूँ, और इसका जो सोल्यूशन था वो आपके पास ये आ रहा था. दैट वाज एग्जैक्टली द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस. और फिर उसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं. तो इसको अगर आप मैथमेटिका से प्लॉट करने की कोशिश करें तो कैसे प्लॉट होगा. v कोई भी वेरिएबल है और वो इक्वल है the solution of the differential equations, and in this case the solution is a into exponent of x. यहाँ पे हम e power x नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जो बिल्ट इन कमांड है वो ये है कि एक्सपोनेंट को आप e x p से डिनोट कर सकते हैं, और जो वेरिएबल है उसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, एंड a इज़ कांस्टेंट वैल्यू. a को मैं यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर असाइन कर रहा हूँ विच इज़ 10 इन दिस केस, और फिर इस कमांड को मैं रन कर रहा हूँ. सो शिफ्ट एंटर, एंड बाय शिफ्ट एंटर वी हैव द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ दिस ग्राफ. तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए आप देख सकते हैं कि उसके लिए जो ग्राफ बन रहा है वो एग्जैक्टली इस तरह का पैराबोलिक फॉर्म बन रहा है. तो अगर आप उस सोल्यूशन में देखें तो जो ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है वो 1 डिग्री से इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है. जिस तरह आजकल की जो सिचुएशन, जो पेंडेमिक सिचुएशंस है, अगर आप उसको इस सिचुएशंस को विजुलाइज करें तो ये जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जो वैल्यूज़ है वेलोसिटी की, जो वैल्यूज़ है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है. तो बाय एक्सपोनेंशियली वी मीन के जो जो आप इस x को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ है वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिचुएशंस को हम देखें तो जितने आपके केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इतने आपके पास, मतलब जितनी स्प्रेडिंग हो रही है वायरस की, उतने आपके पास लोग इफेक्ट हो रहे हैं. सो द स्प्रेडिंग ऑफ द वायरसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इन्फेक्शन इन द पीपल. तो ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है. तो यू कैन रिलेट दिस विद द करंट पेंडेमिक सिचुएशन, और इसको आप विजुलाइज भी कर सकते हैं यूजिंग द मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर और एनी टूल इन मैथमेटिक्स. नेक्स्ट, इस बुक में हमने एक असाइनमेंट आप लोगों को असाइन की थी और आपको ये कहा था कि आप इसको सॉल्व करें, एंड असाइनमेंट वाज एग्जैक्टली दिस वन.
और इस डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर आप सोल्यूशन देखें तो ये इसकी सोल्यूशंस आ रही है, और हम इस सोल्यूशन को कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको क्या करें, मैथमेटिका से इसको विजुलाइज करें। तो यहाँ पे मैथमेटिका में इसको इफ़ यू लुक एट द इक्वेशन दैट इज़ एग्जैक्टली, इसको मैंने लिखा है पहले। आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि v इज़ एनी वेरिएबल विच इज़ इक्वल टू a into 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 कैसे लिखा जाता है। आप अगर कीबोर्ड से कंट्रोल और बैक जो स्लैश है, बैक स्लैश, इसको जब आप प्रेस करोगे तो आपके पास इस तरह का एक रेशो फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आप x लिखें और फिर इसमें इस पे पावर क्यूब भी है, तो कंट्रोल इनटू जो पावर बटन है उसको आप क्लिक करें तो ऊपर आपके पास पावर आ जाएगा, एंड नीचे आप इसके नीचे 6 लिख सकते हैं। तो आप मैथमेटिका में कीबोर्ड से जो है ऐसे आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कंपोज कर सकते हैं। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप इसको रन करें, इसको मैं फॉर इंस्टेंस इरेज करता हूँ, ठीक है। शिफ्ट एंटर आप जब प्रेस करते हैं तो ये एग्जैक्टली आपके पास ये जो विजुअल बन रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली द ग्राफ ऑफ द दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। And further we have some other functions like अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो उसको आपने सिंपल लिखना है प्लॉट 3D एक्स क्यूब। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो इस फंक्शन को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं प्लॉट 3D इनटू ब्रैकेट्स, दीज आर द ब्रैकेट्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और फिर एक्स और वाई के लिए डोमेन में डिफाइन करें कि एक्स का ये डोमेन है और वाई का ये डोमेन है। जब आप इसको शिफ्ट एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह का एक सरफेस आएगा, एंड बहुत दिस इज़ अ 3D सरफेस जो हर कॉर्नर आप इस सरफेस का हर कॉर्नर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिका से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको या कोई भी फिजिकल फिनोमेना को हम क्या कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं। और विजुअल से हम फिर डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें विजुअल्स में कैसे चेंज आ रहा है, कि आप वन कोऑर्डिनेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप कोई भी कांस्टेंट नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं तो उस पर कैसे इफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली द मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर, एंड यू कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर फॉर फर्दर एनालिसिस इन योर कोर्स। और इससे आप कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन या कोई भी जितना भी आपके पास कैलकुलस है, पूरी बुक जो है उस पूरी बुक को आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं, थ्रू दिस मैथमेटिक का सॉफ्टवेयर हम क्या कर सकते हैं, उसके विजुअल्स देख सकते हैं। थैंक यू।